Good afternoon, everybody. In the Good first afternoon. session, Good afternoon, ma'am. good afternoon. Today, in the first lecture, I am going to cover two topics, that is literature review, what literature review is, and how it should be written. Right? That is a very important part of this session. And open access. That means what are the resources available under open access that we can use for our literature review purpose. I will be talking in both the languages, that is Hindi as well as in English. Okay. So, friends, let's start with review of literature. See, as you all know, being the registered students for PhD, the research process is a cyclic process, right? Right from problem formulation, then assumptions, that are hypothesis, research design, measurements, collection of data, analysis and interpretation of data, and again coming to the generalization of the conclusions, right? So it is actually the cyclic process. And your topic of research, how it should be. देखिए, आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें इनके हुलिये से ऐसे लगता है कि इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है, ये साइंटिस्ट है, लेकिन इन्होंने एंड प्रोडक्ट क्या है इनके रिसर्च का, द विल, एक्चुअली जिसका आविष्कार सदियों पहले हो चुका है, राइट? एंड ही इज आस्किंग द पेटेंट एग्जामिनर्स टू ग्रांट अ पेटेंट फॉर हिज इन्वेंशन. Actually, it is just the duplication of work, waste of efforts, money, and time, right? And such research cannot stand. So, you should avoid duplication of research, okay? And your invention and the research topic, it should be new, okay? Sorry, I joined. Yeah, somebody is sending message. Okay, this is review of literature topic and open access, right? So the thing is, your invention should be new. There should be some novelty that you should take into point. But how you will prove that, how you will justify that your research is new? So for that purpose, you have to carry the prior art search. Prior art search means review of prior literature, okay? And that is why it is very important review of literature in your research process. Now, what review of literature is? It is a discussion of your knowledge about the topic under study. आपका क्या knowledge है आपके topic पे, उसका discussion. It is a discussion of your knowledge that is supported by the research literature. And the third one is, it should form the foundation for your study, right? That is actually literature review is. देखिए, आप कुछ थीसिस दिखेंगे, कुछ पेपर्स दिखेंगे, तो आपको इस प्रकार से रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा हुआ दिखाई देगा, राइट? देखिए, ये पहला पेपर है जिसका रिव्यू उन्होंने लिखा है, ये दूसरा पेपर है, तीसरा पेपर है. तो अभी समझिए कि while writing review of literature, there are 3 standard practices of arrangement of the papers you have selected to discuss for your review of literature. The first arrangement is alphabetically by author's surname. The second one is chronologically, and the third one is theme based. Okay, thematic arrangement. Now, what is actually the drawback of the alphabetical arrangement by the name of the author? देखिए, suppose you are working on the topic nanotechnology, okay, और nano particles. अभी आप इस टॉपिक पे काम कर रहे हो, तो हो सकता है जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है वो भी उसके ऊपर लिखे, और जिसका नाम जेड से शुरू हो रहा है वो भी उसके ऊपर लिखे. तो एक ही विषय के दो रेफरेंसेस, एक तो स्टार्टिंग में आएगा और एक आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर के आखिरी में जाएगा. तो ऐसी अरेंजमेंट में क्या होता है कि आप सब टॉपिक्स को एक साथ जोड़ के
उसका आपस में संबंध क्या है वो दिखाना आपको डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऐसे रिसर्च में अपनाया जाता है जहां पे आपको कुछ सब्जेक्ट का ट्रेंड स्टडी करना हो कि ये सब्जेक्ट ईयर वाइज कैसे 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 डेवलप किया गया, राइट? इन दैट केस दिस chronological arrangement is very helpful. But the third one is thematic arrangement. The thematic arrangement of review of literature chapter is the most flexible arrangement. And यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप दो पेपर का आपस में क्या संबंध है उसकी तुलना भी कर सकते हो, right? So it is very very comfortable and flexible arrangement of writing review of literature in your thesis. Now one more thing I would like to tell you. अभी यहाँ पे देखिए ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है इसमें उन्होंने क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट अपनाई है। नाउ वन मोर थिंग, आपको ऐसे नहीं लगता ये स्क्रीन देख के कि आप टुकड़े टुकड़े में पढ़ रहे हो रिव्यू ऑफ लिटरेचर? तो ऐसे लिखने की स्टाइल नहीं होती है, आपको यहाँ पे डिस्कशन करना पड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक पेपर आपने सिलेक्ट किया रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के लिए, तो ऑथर ने जो एब्स्ट्रैक्ट लिया है वैसे के वैसे आप कॉपी और पेस्ट करते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है? प्लेजरिज्म का प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे वैसे के वैसे पैचेस दिखाएगा वो, ये यहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया। यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपका सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्लेजरिज्म पाया जाता है। इसीलिए ऑथर के वर्ड्स को कम यूज करना आपके लिए बेहतर होता है। उसके लिए कुछ टेक्निक्स हम देखेंगे। देखिए, द लिटरेचर रिव्यू इज नॉट अ स्टडी बाय स्टडी or article by article description of studies previously done. It is not a restatement of the studies previously done, and it is also not taking brief overview of articles, right? ये सब उद्देश्य नहीं होते हैं लिटरेचर रिव्यू के। देखिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के लिए कुछ गोल्स होते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है टू डेमोन्स्ट्रेट फैमिलियरिटी विथ अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड टू एस्टैब्लिश क्रेडिटेबिलिटी। दूसरा होता है टू शो द पाथ ऑफ प्रायर रिसर्च एंड हाउ अ करंट प्रोजेक्ट इज लिंक्ड टू इट। आपको पूरा प्रीवियसली डन रिसर्च को वहां पे हाईलाइट करना पड़ता है और आपका टॉपिक कैसे उससे बेहतर है, उससे आगे की स्टेप में है, वो आपको प्रूव करना पड़ता है। Then to integrate and summarize what is known in an area and to learn from others and stimulate new ideas. So these four are the basic goals of literature review in research. क्यों कंडक्ट किया जाता है? तो सबसे पहले to identify the gaps in the research. देखिए, what do you mean by gap? इसका अर्थ मैं समझाती हूँ अभी आपको। देखिए, आपने एक ब्रॉड टॉपिक लिया तो उसके ऊपर का जो लिटरेचर है वो आप सर्च करते जाओगे तो आपको समझेगा कि ये जो टॉपिक है इसके ABCDE ऐसे 5 सब टॉपिक्स निकलते हैं ये टॉपिक के। तो फिर आप देखेंगे कि ए पे बहुत रिसर्च किया है लोगों ने, बी पे उससे थोड़ा कम किया है, सी में आपको हार्डली 1 या 2 रेफरेंसेस मिलेंगे। यानी वो जो सब टॉपिक है आपके एरिया का वो आपको समझ में आ रहा है कि इस पे ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, डी पे कम हुआ है, ई पे बहुत ज्यादा हुआ है। तो ये जो कम जिस टॉपिक में काम हुआ है उसको गैप कहते हैं। ऐसे टॉपिक्स आपको लेने चाहिए क्योंकि उसमें आपको नया नया काम करने के लिए मौका मिलता है। दूसरा, व्हाई वी कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू टू अवॉइड द डुप्लीकेशन इन रिसर्च। सो डोंट reinvent the wheel again and again as I have shown in the picture. Okay, then third one is to carry on from where others have already reached. देखिए, आपका लिटरेचर रिव्यू जो है वो इतना एग्जॉस्टिव होना चाहिए कि आपको वो पॉइंट जो है पकड़ना है कि लोगों ने इस टॉपिक को कहाँ तक लाया है, फिर वो पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा
और फिर आप उसके आगे का काम आप खुद के रिसर्च में करोगे, राइट। फिर आपको पता चलता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर से कि कौन से लोग इस फील्ड में माहिर है, तज्ञ है, जिन्होंने ये फील्ड में बहुत काम किया है। ओके, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और आप जितना आर्टिकल्स रीड करोगे, आप जितना लिटरेचर रीड करोगे, उतना आपका वो सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ता है। ओके। और इसमें कभी कभी क्या होते हैं कि कुछ कुछ ऑथर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अपोजिट व्यूज होते हैं, तो वो भी आपको समझ में आते हैं और वो भी आपको डिस्कशन में लिखना पड़ता है। ठीक है, अपोजिंग किसी ने अपोज किया क्या, फिर आपको ये भी समझता है कि किसने कौन सी रिसर्च मेथड यूज की है। ठीक है। देन आप एक देखोगे कि इसमें पीयर रिव्यूअर कौन है, राइट, स्टालवर्ड्स कौन है एक क्षेत्र में, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। और the overall aim of writing literature review is justify your study, that my study is different from all this new point I am going to cover in my research. Okay, so these are the goals. Then we will see how to organize. Okay, so literature review लिखने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है, आपको क्या क्या गुण आप में आने चाहिए। सबसे पहला होता है कि नॉलेज टू यूज ऑफ इंडेक्सेस एंड एब्स्ट्रैक्ट्स। देखिए, हर विषय में कुछ इंडेक्सिंग सर्विसेज होती है, कुछ एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज होती है। जैसे यहाँ पे साइंस के लोग होंगे तो आपको सबको पता है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट करके एक पब्लिकेशन है। तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट में क्या मिलता है आपको, 1965 से जितने भी साइंस के जर्नल्स इंडिया में पब्लिश होते हैं, रेप्यूटेड जर्नल्स, तो उसमें जितने भी पेपर्स पब्लिश हुए हैं, तो उसकी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन और उसका एब्स्ट्रैक्ट आपको एक जगह मिलता है एंड दिस इज अवेलेबल ऑनलाइन आल्सो। तो आप सीधा वो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट के पोर्टल में जाके इफ यू गिव द कीवर्ड ऑफ योर चॉइस, तो उसके ऊपर 1965 से कितने पेपर्स पब्लिश हुए हैं वो आपको एक जगह मिल जाते हैं। So you must know, the very first thing, you identify indexing and abstracting services in your subject. That is the first thing. Secondly, ability to conduct exhaustive bibliographic searches. See, we use Google search box, लेकिन गूगल सर्च बॉक्स आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है और आपकी काम की बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है वहां पे। ओके, तो आपको सर्च स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है। तो आपको सर्च टेक्निक्स कौन से है, जैसे केस सेंसिटिविटी, बुलियन लॉजिक, ओके, उसके बाद में प्रॉक्सिमिटी सर्च। तो ये सब जो सर्चिंग टेक्निक्स है वो आपको आनी चाहिए ताकि आप सर्च इक्वेशन एग्जैक्टली बना सको। तीसरा है यू शुड हैव एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड डेटा मीनिंगफुली। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या करते हैं जनरली, मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं पीएचडी के, उनका तो 5 साल का पूरा लंबा कोर्स होता है। तो वो क्या करते हैं, जब भी वक्त मिलता है इंटरनेट पे वो सर्च करते हैं, कोई अच्छा आर्टिकल मिला तो पेन ड्राइव में सेव कर लेते हैं। और पेन ड्राइव में सेव करने से वो फोल्डर की साइज सिर्फ बढ़ते जाती है, लेकिन वो डेटा मीनिंगफुली ये नहीं होता है ना, सब हाइफोजार्ड वे में होता है। और आखिरी में जब हम लिखने जाते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वो सब आर्टिकल्स को लेते हुए, तो इतने सारा कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे तैसे वो चैप्टर को निपटा देते हैं। तो ये निपटाना जो है वो रिसर्च में अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर अगर आप स्टार्टिंग से सिस्टमेटिकली करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और उसके ऊपर आपके आर्टिकल्स निकलेंगे, राइट। देन आप में एक और एबिलिटी होनी चाहिए, डिस्क्राइबिंग, क्रिटिसाइजिंग एंड रिलेटिंग द सोर्सेस विथ ईच अदर। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू में पैचवर्क नहीं चलता है, ये चीज ध्यान में रखिए। टुकड़े टुकड़ों में रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं लिखना चाहिए। इसीलिए आपको क्या है, वो पेपर का पूरा रिव्यू लिखने के बाद में कुछ आपके पॉइंट्स उसमें डालने चाहिए। कोई क्रिटिसिज्म है कि आपको ये चीज नहीं पट रही, आप उस चीज से सहमत नहीं हो,
या फिर ये ऑथर दूसरे ऑथर से अलग कुछ बता रहा है, ये ऐसे डिस्कशन के पॉइंट्स उसमें आना चाहिए. देन लिटरेचर रिव्यू शुड बी प्रेजेंटेड in organized manner logically. Okay, ऑर्गेनाइज्ड मैनर क्या है वो मैं सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में आपको बताऊंगी. ओके, एंड एथिकली स्पीकिंग, आपने जितने भी रिव्यूज या आर्टिकल्स आपने देखे हैं, पढ़े हैं, तो उनको आपको साइटेशन देना, उसका रेफरेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में. अभी देखिए, ये जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर को आपने ऑर्गेनाइज करना है, चैप्टर में लिखना है, तो आपको कैसे लिखना पड़ता है. देखिए, ये जो है ये मेन स्टेम है, फिर ये उसकी ब्रांचेस है, और फिर उनकी सब ब्रांचेस है. तो ऐसा एक स्केलेटन आपको पहले बनाना पड़ता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का. जैसे ये एजुकेशन का उदाहरण है, होम विजिट्स. तो होम विजिट्स पे मैं रिव्यू जब लिख रही हूँ, तब मैंने देखा कि होम स्कूल कम्युनिकेशन, एकेडमिक अचीवमेंट, पेरेंट इन्वॉल्वमेंट एंड वॉलंटियरिज्म, ऐसे मुझे 4 सब टॉपिक्स इसके मिले जिसके ऊपर में आर्टिकल्स लोगों ने लिखे. फिर पेरेंट इन्वॉल्वमेंट में मुझे और देखा जनरल आर्टिकल्स ऑन पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, और उसमें बैरियर्स टू पेरेंट इन्वॉल्वमेंट. तो इस प्रकार से मेन थीम होम विजिट्स, उसके ये 4 सब टॉपिक्स, उसमें सब टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स. तो ऐसा स्केलेटन आपको सबसे पहले बना लेना है. ओके, और फिर आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना पड़ता है. अभी देखिए, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रही हूँ. अगर आप पीएचडी कोर्स वर्क कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ योर रिसर्च, राइट? इज इट नॉट? हाँ या ना? कोई उत्तर दे Yes, सकता है? ओके, Yes, ma'am. so I am assuming that you are in the initial stage of your research. तो आपके पास वक्त है. आप क्या कीजिए, एक 1 मंथ वगैरह आपने स्कैनिंग शुरू किया लिटरेचर का, राइट? तो आपको समझ में आता है कि ये सब टॉपिक्स है हमारे रिसर्च टॉपिक के. सपोज आपके रिसर्च टॉपिक के अगर 5 सब थीम्स है, ABCDE, ओके, ये 5 सब थीम्स है, तो आप सिंपली एक काम कीजिए कि 5 अलग अलग फाइल्स बना लीजिए. ठीक है, और आप ऑनलाइन देखते हो तो आपको जो रिलेवेंट आर्टिकल जो आप पेन ड्राइव में सेव कर रहे हो, तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए. देखिए, ऑनलाइन में आप जो कॉपी पेस्ट करते हो ना, तो उसमें आपका थीसिस में प्लेजरिज्म का परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा. ठीक है, कल मैं प्लेजरिज्म के ऊपर में भी बात करने वाली हूँ, तब आपको बताऊंगी कि कितना सीरियस ऑफेंस है ये प्लेजरिज्म, राइट? तो आपने ये 5 सब थीम्स के फाइल ए, फाइल बी, फाइल सी, फाइल डी, फाइल ई बना ली. अभी आपको जो सपोज आपको एक पेपर मिला जो ए से बिलोंग करता है, तो आप उसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिए. अभी ऐसे भी हो सकता है कि एक पेपर में ए सब थीम के बारे में भी लिखा हो, बी सब थीम के भी बारे में लिखा हो, तो वो पेपर दोनों इसमें लिख दीजिए ऊपर में. अभी क्या किया आपने, एक पेपर का प्रिंट आउट निकालिए, उसके ऊपर एक ब्लैंक पेपर स्टेपल कर दीजिए, राइट? और अभी इसके ऊपर आपका काम आएगा. सबसे पहले आपको रेफरेंस साइट करने के लिए जो बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स लगती है वो पहले लिख लो. हु इज द ऑथर, व्हाट इज द टाइटल, नेम ऑफ द जर्नल, इशू, डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड ऑल. ठीक है, वो लिख लिया. उसके बाद में आप ऑथर का एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए. ऑथर का एब्स्ट्रैक्ट में से जो पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं वो लीजिए. फिर आप उसका पूरा पेपर पढ़िए. देखिए, यही बच्चे नहीं करते, पेपर को पूरा नहीं पढ़ते हैं वो, इसीलिए ये जो चैप्टर है वो सब स्टैंडर्ड बन जाता है उनका, पूरा एग्जॉस्टिव नहीं बनता है. ये पहली चीज बताना चाहूंगी. आप पूरा पेपर को पढ़ लीजिए, वो ऑथर ने कौन सी मेथड यूज किए, उसके मेजर कंक्लूजन्स क्या है, उसके सजेशंस क्या है, वो थोड़ा अपनी भाषा में अपने नोट्स निकाले जैसे वो पेज पे लिख दीजिए. ठीक है, और वो कंसर्न फाइल में लिख दीजिए. और वो पेज पे ये भी लिखिए कि वो पेपर आपको कौन से थीम के अंडर में डालना है. अगर वो पेपर ए और सी दोनों थीम के लिए डालना है, तो ऊपर में रेड पेन से लिख दीजिए A and C,
मतलब ये 2 सेक्शंस में ये पेपर का डिस्कशन होना चाहिए, राइट। ए सेक्शन में ए के संदर्भ से, सी सेक्शन में सी के संदर्भ में उसका डिस्कशन 2 जगह होगा, राइट। अभी आगे चलते देखिए, ये जो चैप्टर होता है उसके 4 भाग होते हैं बेसिकली। पहला होता है इंट्रोडक्शन टू रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसमें आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये कुछ भी नहीं लिखना है। तो आप सुनिए मेरी बात, ये जो चैप्टर है इसके 4 भाग होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है बॉडी ऑफ लिटरेचर रिव्यू, तीसरा होता है समरी और चौथा होता है रेफरेंसेस। तो ये 4 भागों में ही आपको ये चैप्टर लिखना है। अभी इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में आप ब्रीफली आपका पर्पस क्या है स्टडी का, ब्रीफली आपका टॉपिक क्या है वो लिखेंगे, और आपको यहाँ पे एक आंकड़ा लिखना है कि हाउ मेनी रिलेवेंट रिसोर्सेस यू हैव सिलेक्टेड फॉर डिस्कशन इन दिस चैप्टर। देखिए, सपोज आई हैव सिलेक्टेड 100 पेपर्स फॉर डिस्कशन फॉर माय लिटरेचर रिव्यू, तो आप बोल्ड में लिख दीजिए द रिसर्चर हैज सिलेक्टेड 100 द मोस्ट रिलेवेंट पेपर्स फॉर डिस्कसिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन दिस चैप्टर, उसको बोल्ड कर दीजिए। इसका फायदा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कभी भी हम लोग अभी ओपन वाइवा कंडक्ट करते हैं तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा, जब हम बच्चों को पूछते हैं भैया कितने आर्टिकल्स का रिव्यू तुमने ये चैप्टर में लिया है, तो फिर वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है 70-80 सर। तो फिर से प्रश्न आता है 70 या 80 या 75। तो ये प्रश्न को अवॉइड करने के लिए आपके माइंड में वो आंकड़ा रहना चाहिए कि वी हैव सिलेक्टेड 100 रिलेवेंट पेपर्स फॉर डिस्कशन इन दिस चैप्टर। फिर उसके बाद में आपने ये 100 पेपर्स कहाँ से लिए हैं? लोग लिखते हैं वी हैव कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल, फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम www। ऐसे नहीं लिखना है आपको। आप लिखिए उसमें कि हमने वेब ऑफ साइंस का डाटा यूज किया है, हमने स्कोपस डेटाबेस यूज किया है, हमने साइंस डायरेक्ट डेटाबेस का यूज किया है, या फिर इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का यूज किया है, हमने टॉप मोस्ट जर्नल्स जो है उसका यूज किया है ना। तो ये जो सोर्सेस है ये आपको लिखने हैं उसमें, ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि अरे इन्होंने स्टैंडर्ड सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है हाई इम्पैक्ट वाले उसको यूज किया है, राइट। उसके बाद में आपको ये जो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, इसमें और एक चीज लिखनी है, वो है स्केलेटन, हाउ यू हैव अरेंज्ड दिस रिव्यूज। ओके, मतलब मैंने कहा था आपको कि अल्फाबेटिकल बाय द ऑथर सरनेम, क्रोनोलॉजिकल, थीमेटिक। तो वहां पे लिखिए कि द रिसर्चर हैज अडॉप्टेड थीमेटिक अरेंजमेंट। ओके, फिर थीमेटिक अरेंजमेंट में आप ये दे दीजिए ब्रॉड टॉपिक, उसके ये 5 सब टॉपिक, उसके सब टॉपिक के सब टॉपिक है, ऐसा एक स्केलेटन उसमें डाल दीजिए। इतना ही चीज अपेक्षित है आपके इंट्रोडक्शन सेक्शन में, राइट। मैं फिर से दोहराती हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड पर्पस ऑफ योर स्टडी, उसके बाद में हाउ मेनी पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड, हाईलाइट द नंबर, तीसरा फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन दिस द सोर्सेस, और चौथा है व्हाट इज द टाइप ऑफ अरेंजमेंट। द टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज थीमेटिक, अगर थीमेटिक है तो गिव द स्केलेटन हाउ द थीम्स आर अरेंज्ड, राइट। अभी ये हो गया इंट्रोडक्शन खत्म। इट शुड नॉट टेक more than 1 page or 1.5 page. Okay, then you come to body of review of literature. अभी आपका एक्चुअली डिस्कशन शुरू हो रहा है। अभी ये डिस्कशन में आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका जो थीम है, मेन थीम, उसको एक पैराग्राफ में लिखो। फिर आपका जो सब थीम है, ए सब थीम आपने लिया, सपोज ए सब थीम में आपके पास में 10 पेपर है, राइट। तो ये 10 पेपर आपके पास में फाइल में रेडी है, तो ए सब थीम का आप
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए 1-2 पैराग्राफ में, और फिर लिखिए कि ये सब थीम में हमने 10 द मोस्ट रिलेवेंट पेपर्स चुने हैं फॉर डिस्कशन। ओके, और फिर ये 10 जो पेपर्स आपने चुने हैं, तो आपके नोट्स तो लिखे हुए तैयार है 10 पेपर्स पे, आप उसका डिस्कशन करना शुरू कीजिए। ठीक है, और ऐसे पूरे 10 पेपर डिस्कस होने के बाद में आपको फिर अपना डिस्कशन बताना है कि ये 10 पेपर का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, राइट? दैट विल बी द समरी फॉर द सब टॉपिक ए। इतना आपको लिखना है। ये समरी में आप उन 2 पेपर की तुलना कर सकते हो, 2 पेपर के रिसर्च मेथड्स कैसे डिफर है वो बता सकते हो, कोई कंट्रोवर्शियल थिंग है तो वो हाईलाइट कर सकते हो, एक पेपर का दूसरे पेपर के साथ में आपस में संबंध क्या है, उस प्रकार से आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। दैट विल बी प्योर लिटरेचर रिव्यू यू हैव डन। ओके, अभी क्या होता है, ये आपने जिस्ट लिखा, दैट विल बी द समरी फॉर द सेक्शन 1। अभी सेक्शन 1 हमारा सेक्शन 1 खत्म हो गया। अभी हम सब टॉपिक पे आते हैं बी। तो देखिए, ओके, देखिए, जनरली वी अवॉइड फिगर्स एंड टेबल्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट? वो क्वेश्चन था, अभी हाईलाइट हुआ करके मैं बता रही हूँ। अभी और एक चीज ध्यान में रखिए, नाउ यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम ए टू बी समथिंग, तो ए और बी में संबंध दर्शाने वाला एक ट्रांजिशन पैराग्राफ आपको लिखना है, ताकि आप स्मूथली जाके ए से बी पे आ जाएंगे। फिर बी आने के बाद बी का इंट्रोडक्शन, बी में सपोज आपके पास में 12 पेपर्स है, वो 12 पेपर्स का डिस्कशन, फिर बी का समरी, फिर ट्रांजिशन पैराग्राफ, एंड देन कम टू थीम सी, राइट? ऐसे आपके पूरे 5 सब थीम्स ओवर हो जाते हैं। फिर आपका ये जो बॉडी ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर खत्म होता है, सेकेंड पार्ट। एक्सक्यूज मी। अभी तीसरा है समरी, एंड समरी विल बी फॉर ओवरऑल चैप्टर। आपने ये सब जो लिखा है उसका एक कंक्लूजन समरी लिखना पड़ता है। समरी पार्ट मस्ट होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। वो अगर आप नहीं लिखोगे तो टेक्निकली आपका वो चैप्टर कंप्लीट नहीं है, ऐसा समझा जाता है। ओके, और उसके बाद में आपने ये जो 100 पूरे रेफरेंसेस यूज किए हैं, जिसका डिस्कशन आपने किया है, तो उसका आपको रेफरेंस देना पड़ता है। यू हैव टू साइट दोज पेपर्स, राइट? और ये साइटेशन जो देना पड़ता है वो आपको इसलिए देना पड़ता है कि कहीं कुछ प्लेजरिज्म का इश्यू आए तो आपने उसको कोट किया है ना, आखिरी में। तो एथिकल इश्यू है ये, और आपको रेफरेंस देना मस्ट होता है। फॉर गिविंग दिस रेफरेंस आप एपीए स्टाइल मैनुअल, एमएलए स्टाइल मैनुअल, शिकागो स्टाइल मैनुअल, इस प्रकार के स्टैंडर्ड स्टाइल मैनुअल्स भी यूज कर सकते हो। आप ऑनलाइन रेफरेंस टूल्स भी यूज कर सकते हो, जैसे जोटेरो है, मेंडले है। तो इस प्रकार से ऑनलाइन रेफरेंस टूल्स भी अवेलेबल है। और हमारा जो एमएस वर्ड है, उसमें भी एक टूल है साइटेशंस देने का। तो वो एमएस ऑफिस का टूल भी आप यूज कर सकते हो, राइट? आपको सबको मुझे बताइए, एमएस वर्ड में रेफरेंसेस ऑटोमेटिक जनरेट कैसे होते हैं, वो पता है क्या आपको? नहीं मैम। नो मैम। नहीं? यस मैम। कितने लोगों को पता है? नहीं नहीं मैम। नो मैम। नहीं? डू यू वांट मी टू गिव अ क्विक डेमोन्स्ट्रेशन? यस यस मैम। मैम। यस मैम। Okay, I'll just give the demonstration.
just 1 second. Just 1 second. Huh? See, now you can see this Word document, blank Word document. Yes, दिख रहा ma'am. है सबको? Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. अभी देखिए, Yes, ma'am. this I have written something over here. Okay. अभी मुझे इसके लिए रेफरेंस देना है. तो देखिए, रेफरेंसेस जो होते हैं वो दो प्रकार से लिखे जाते हैं. एक होता है शॉर्ट रेफरेंस जो रनिंग टेक्स्ट में लिखा जाता है, और एक होता है लॉन्ग रेफरेंस जो चैप्टर के एंड में लिखा जाता है. राइट. अभी मुझे ये मैंने कहाँ से लिया? सपोज दिस इज अ डेफिनेशन एंड आई हैव टेकन इट फ्रॉम अ बुक. ओके. तो मुझे यहाँ पे उसका शॉर्ट रेफरेंस देना है. तो आई विल गो टू रेफरेंसेस. ठीक है. आई विल गो हियर, इंसर्ट साइटेशन. ठीक है. एड न्यू सोर्स. तो मुझे यहाँ पे एक बॉक्स आता है, उसमें मुझे चुनना है कि विच टाइप ऑफ सोर्स इज. सपोज इट इज अ बुक. तो बुक के लिए ऑथर का नाम लिखना है. अभी ऑथर का नाम आप हिरवड़े मंगला लिखेंगे तो यहाँ पे वो उल्टा कर देगा, इसलिए फर्स्ट नेम से जैसे आप लिखते हो वैसे ही लिखिए, मंगला हिरवड़े. ओके. अगर वो कंपनी है कोई या यूनिवर्सिटी का पब्लिकेशन है तो कारपोरेट ऑथर में आप जा सकते हो इसको टिक करके. सपोज टाइटल है स्टाइल मैनुअल्स. इसका पब्लिकेशन ईयर क्या है? इसका पब्लिकेशन ईयर है 2020. कहाँ से पब्लिश हुआ? इट इज फ्रॉम मुंबई. हु इज द पब्लिशर? पब्लिशर है एस चांद. ओके. अभी देखिए, इसके ये तो आपको मिनिमम चाहिए, लेकिन इसके अलावा वो बुक के बारे में कुछ जानकारी आपके पास है और वो डालना चाहते तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो ये बाकी के भी चीजें आएंगी. ओके. इसको मैंने अभी ओके कर दिया. तो देखिए ये आया शॉर्ट रेफरेंस. इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट रेफरेंस. नेम ऑफ द सरनेम ऑफ द ऑथर कॉमा 2020. अभी मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ. सपोज दिस थिंग आई हैव टेकन फ्रॉम अ जर्नल. तो आपको फिर से यहाँ पे कर्सर रखना है, यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन करना है, एड न्यू सोर्स करना है, एंड अगेन गो टू, सपोज इट इज जर्नल आर्टिकल. तो जर्नल आर्टिकल लिया मैंने. अभी यहाँ पे दो ऑथर है मेरे पास में. सपोज प्रीति धार्मिक, और देखिए सेमी कोलन जो होता है वो आपको यहाँ पे डालना है दो ऑथर के बीच में. दैट इज द स्टैंडर्ड रूल. ओके. एंड मंगला हिरवड़े. ओके. सपोज टाइटल ऑफ द बुक, जर्नल का टाइटल मतलब आपका पेपर आपने किस पे लिया? तो हार्वर्ड मैनुअल. ओके. हार्वर्ड मैनुअल ये मेरे पेपर का टाइटल है. कौन से जर्नल में वो पेपर पब्लिश हुआ? वो पेपर मेरा पब्लिश हुआ इंफॉर्मेशन एज में नाम के जर्नल में. कौन से साल में हुआ? 2021 में हुआ. कौन से पेजेस पे वो रन हो रहा है? वो पेजेस पे रन हो रहा है 10 से 15 पेजेस का पेपर है. और जर्नल के बारे में आपको वॉल्यूम नंबर, इश्यू नंबर भी डालना है, तो यहाँ से आपको अतिरिक्त फील्ड्स मिल जाएंगे. सपोज उसका वॉल्यूम 10 है, इश्यू नंबर 2 है. ठीक है. ये मैंने डाल दिया, इसको मैंने ओके किया. तो देखिए ये आया गया धार्मिक एंड हिरवड़े 2021. ठीक है. मैं और आगे जाती हूँ. अभी देखिए ये जो पर्टिकुलर चीज है ये मैंने ली हूँ वेबसाइट से. ठीक है. तो मैं यहाँ पे कैसे दूंगी ये एड न्यू सोर्स.
ओके। और ये मैं यहाँ पे चुनूंगी सी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग वेबसाइट डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट, ठीक है। सपोज डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट, तो ऑथर कौन है? ऑथर है सपोज मीरा तिवारी, ओके। देखिए सपोज मीरा तिवारी ने लाइब्रेरी के वेब पेज पे कुछ तो भी लिखा है, ओके, जहां से मैंने वो डाटा ली हूँ। तो नेम ऑफ द वेब पेज क्या होगा? RTMNU लाइब्रेरी, ओके, या KRC। अभी ये लाइब्रेरी नहीं कहते, KRC नॉलेज रिसोर्स सेंटर। और वेबसाइट क्या आएगी? RTMNU, ठीक है। कौन से साल में लिखी है उसने? उसने लिखी है 2022 पे। अभी आप जब भी वेबसाइट का रेफरेंस देते हो तो आपने किस दिन उसको एक्सेस किया वो लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट का लाइफ कम होता है और वेबसाइट्स बहुत फ्रिक्वेंटली अपडेट होती है। सपोज वो मैंने लिया दिसंबर, कौन से दिन लिया? आज की तारीख है 10। और URL क्या है? URL है www.rtmnu, छोटा सा लिखती हूं मैं, .in, ठीक है, स्लैश। अभी लाइब्रेरी वेब पेज का अगर आएगा तो KRC, ठीक है, ओके। इसको मैंने लिखा, ये देखिए आ गया यहाँ पे तीसरा रेफरेंस। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अभी मेरा लिखना पूरा हो गया। एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप देंगे रेफरेंसेस, राइट। तो अभी रेफरेंसेस में अगर आप जाएंगे और यहाँ पे बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो बिब्लियोग्राफी में यहाँ पे नीचे आता है इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, उसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ गए। ये समझा सबको? Yes, ma'am. मैडम अब प्लीज रिपीट। चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैम है रिपीट ना। कीजिए थोड़ा। मैडम रिपीट कीजिए थोड़ा सा, ये सेशन रह गया देखिए है। इंसर्ट साइटेशन में जाएंगे, एड सोर्स में जाएंगे, राइट। फिर आप चुनोगे वेदर इट इज अ बुक, जर्नल्स क्या है वो। फिर उसके बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन आप टाइप करोगे वो टेबल में। टाइप होने के बाद में शॉर्ट रेफरेंस जनरेट होगा, ये वाला। शॉर्ट रेफरेंस जनरेट होने के बाद में आप उसको भूल जाएंगे और फिर से दूसरा रेफरेंस डालेंगे, फिर तीसरा। ऐसा पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद में रेफरेंसेस सेक्शन में यहाँ पे कर्सर रख के आपको बिब्लियोग्राफी को क्लिक करना है। बिब्लियोग्राफी में नीचे में आएगा ऐड बिब्लियोग्राफी। ऐड बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करने के बाद में ये जो शॉर्ट रेफरेंसेस है वो उसके फुल डिटेल्स जो आपने डाले हैं वो इस प्रकार से आएंगे। अभी ये देखिए ये मैंने जनरेट किया रेफरेंस APA स्टाइल से, राइट। तो यहाँ पे बाकी भी स्टाइल्स है, देखिए APA 6th एडिशन से ऐसे जनरेट हुए। आप देखेंगे यहाँ पे एम्परसैंड का यूज हुआ है दो ऑथर मैम के बीच एमएलए में। एमएलए स्टाइल का कुछ बताओ MLA स्टाइल में। अभी आप इसको देखिए, यस ये है, ये मैंने जनरेट कर दिया APA स्टाइल में। अभी यहाँ पे मैं जाऊंगी MLA 7th एडिशन, तो देखिए ये चेंज हो गया, देखा आपने? ओके। अभी मैं इसको मैम फिर ये एडिट नहीं कर सकते क्या इनको, इनकेस एडिट करना हो तो? कर सकते ना मैडम। और मैम इसका फॉन्ट साइज वगैरह हम मतलब जो रिक्वायर्ड जैसे होगा वैसे कर कर सकते हैं? सकते हो, कर सकते हो कस्टमाइज। देखिए ओ, ये शिकागो सिस्टम है, इसमें देखिए एम्परसेंट का यूज नहीं हुआ है, एंड का यूज हुआ है ना। हर स्टाइल का रूल्स अलग अलग है, राइट। देखिए अभी मैं आपको और एक हार्वर्ड बताती हूँ। YCMU ये स्टाइल में लेता है, देखिए ये चेंज हो गया। मतलब एक बार आप वो बॉक्स में डेटा डाल दोगे ना तो आपको जो स्टाइल में चाहिए वो स्टाइल में रेफरेंसेस आएंगे। जैसे इंजीनियरिंग वाले हैं तो IEEE ज्यादा यूज करते हैं। IEEE में देखिए क्या हो गया, यहाँ पे नंबर आए, जैसे जैसे वो रेफरेंस अपीयर होगा वैसे वैसे। प्रीवियस स्टाइल में क्या होता है, तो देखिए जैसे APA स्टाइल है, APA में कैसा होता है कि रेफरेंस सर्कुलर ब्रैकेट में और ऑथर का सरनेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन लेके जनरेट होता है, तो ये अल्फाबेटिकल अरेंज्ड है। लेकिन जब आप IEEE में जाते हो तो वो 1 2 3 लेता है, और ये देखिए ये अल्फाबेटिकली ना होते हुए कैसे अरेंज हो जाता है वो,
इसमें हो जाता है, न्यूमेरिक पैटर्न में, राइट? इतना समझा आपको? अभी देखिए, अभी सपोज मुझे इसमें एडिट करना है ना? तो एडिट करना है तो 1 मिनट मैं यहाँ जाती हूँ। अभी एडिट करने के लिए क्या है, ये अब क्लिक करो, ये एरो को क्लिक करो, एडिट सोर्स, तो फिर आपको ये सब आ जाता है। इसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, राइट? जैसे मुझे मैनुअल्स नहीं चाहिए, मुझे मैनुअल चाहिए केवल, मैंने ओके कर दिया, इसको यस कर दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ चेंज दिखाई दे रहा है आपको, ऐसी है ना? तो आपको इसको क्या करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। पहले सबको डिलीट करो, मतलब हम रिफ्रेश करते हैं ना, वैसे करना पड़ता है। इसको डिलीट करो और फिर से इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करो, तो देखिए यहाँ पे करेक्शन हो गया, स्टाइल मैनुअल आ गया, राइट? यस मैडम, जिन्होंने पूछा एडिट कर सकते हैं क्या? यस मैम। मैम और फॉन्ट साइज वगैरह कैसे करें? अरे कुछ नहीं, सिलेक्ट करो और जो फॉन्ट चाहिए आपको वो लो, अच्छा, वो डायरेक्ट हो जाएगा फिर? डायरेक्ट होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। होम में जाइए, आपको कौन सा चाहिए, आपको एरियल चाहिए, हो गया एरियल। ठीक सिर्फ ये जो इटैलिक्स वगैरह जो है कि नहीं मैडम, तो उसको वैसे ही रखिए, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वैसे ही रहेंगे स्टाइल मैनुअल के हिसाब से, यस। उसको आप मैडम करेक्ट ये मत नागपुर यूनिवर्सिटी में कौन सा स्टाइल यूज करते हैं जनरली? मैडम जनरली एपीए स्टाइल यूज करते हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का एक प्रिस्क्राइब्ड होता है। हमारी यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ दिया नहीं है अच्छा, गाइडलाइंस में, कोई स्पेसिफिक ये करो। तो कोई भी एक स्टाइल यूज करो थ्रू आउट योर थीसिस। ऐसा नहीं कि चैप्टर 1 में एपीए किया, चैप्टर 2 में एमएलए किया, ऐसा मत कीजिए। थ्रू आउट योर थीसिस यूज एनी वन स्टैंडर्ड स्टाइल। मैम जैसे ओके, रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में डिफरेंस है ना? हाँ तो हाँ। जैसे अब अभी अपन ने रेफरेंसेस में बिब्लियोग्राफी डाली है, तो जब बिब्लियोग्राफी भी लिखेंगे तो सेम यही आएगा क्या? देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपने बोला कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में डिफरेंस है, तो बताइए क्या डिफरेंस है? मतलब रेफरेंसेस वो होते हैं जो हम एक्चुअल में अपने पेपर में कहीं ना कहीं उसको लिखते हैं, और हाँ, बिब्लियोग्राफी मतलब वो जो हम पढ़े हैं पर वहाँ लिखा नहीं है आर्टिकल में। आर्टिकल में लिखा नहीं है, तो आपको यही रेफरेंसेस पीछे भी डालने हैं बिब्लियोग्राफी में। हाँ, जैसे एक और अभी जैसे हम लोग को बोला जाता है कि रेफरेंसेस भी लिखो और फिर बिब्लियोग्राफी भी लिखो। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। व्हेन सी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ रेफरेंस एंड अ बिब्लियोग्राफी, ओके? यस मैम। जैसे कि आपने कहा कि रेफरेंस वो होता है जिसको हम पढ़ते हैं, हम उसको हैंडल करते हैं, उसमें से कुछ बोरो करते हैं, वेदर अ टेक्स्ट, वेदर अ डायग्राम, वेदर अ टेबल और डेटा, राइट? यस। वो होता है रेफरेंस। तो वो रेफरेंस देने का थीसिस का स्टैंडर्ड स्टाइल है कि हर चैप्टर के बाद में दो, उस चैप्टर में जो भी लिखा है आपने रेफरेंसेस दो। और ऐसे आपके 5 चैप्टर होंगे तो डेटा एनालिसिस के लिए तो कोई रेफरेंस नहीं होगा, लेकिन बाकी चैप्टर्स के रेफरेंसेस आप उसी चैप्टर के नीचे लिख देंगे, राइट? लेकिन बिब्लियोग्राफी का मीनिंग समझो, यही रेफरेंसेस उठा के आप बिब्लियोग्राफी में देंगे तो क्या मतलब है? बिब्लियोग्राफी वो होती है उस जिसको आप एडिशनल रीडिंग कहेंगे। देखिए आपने जो रिसर्च किया है उसको 5 साल के बाद में कोई और उसके आगे लेके जाएगा, राइट? तो ड्यूरिंग योर 5 years आपको ऐसे लगता है अरे ये सोर्स मैंने देखा नहीं, मैं इसके तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन आगे इस काम को जो बढ़ाएगा उसके लिए ये यूजफुल हो सकता है। ऐसी चीजें वहां पे दो, यानी आपके रेफरेंसेस रिपीट होंगे ही नहीं ना वहां पे। हमारे यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज हुई थी। एक्सटर्नल एग्जामिनर आए और वो रेफरेंसेस ही बिब्लियोग्राफी में लिखे थे बंदे ने, तो उन्होंने पूरा वाइवा उसी के ऊपर लिया उसका, और उन्होंने सीधा सीधा बोला कि डू यू वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर थीसिस, इज इट सो, बाय रिपीटिंग द मैटर। जो आपका बिब्लियोग्राफी पढ़ रहा है वो नेचुरली आपके रेफरेंसेस भी पढ़ेगा ना, भैया इसने क्या क्या यूज किया, इट इज कॉमन सेंस।
So don't repeat your references in bibliographies. Bibliography is meant for additional reading as far as thesis purpose is concerned. Right? ओके ओके मैम। समझ में आया? हाँ ओके, मैम। अभी आगे चलते हैं। इसको स्टॉप कर देती हूँ मैं और मेरा प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। ये राइटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए वो भी समझ में आ गया अभी आपके। 4 सेक्शंस, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, समरी एंड देन रेफरेंसेस। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। These are the 4 sections, right? Introduction, body of review of literature, conclusion, summary, and these are the references. Now I am coming to the open access resources. देखिए, आप सबको पता है कि अभी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। आफ्टर कोविड हम टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा अडॉप्ट कर चुके हैं कि उसका नतीजा ही ये है कि ये कोर्स वर्क हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ले रहे और वर्चुअल स्पेस में हम बात कर रहे, राइट? सो Jenny Arledge has rightly said that technology can become the wings that will allow the educational world to fly further and faster than ever before if we will allow it. देखिए, हम लोगों के पास में अभी बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स आ गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, देन सोशल प्लेटफॉर्म्स, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स जो है, तो ये सब वी आर हैविंग मैसेंजर्स, then live chats. Okay, so these all are the facilities given to us by technology, right? And we must use it. Now we'll go ahead. What open access means, इसका concept मैं आपको बताना चाहूंगी. Open access means the literature which is available on the web, which you can access free of cost. It is free from कॉपीराइट ऑल्सो, मतलब वहां पे ओपन एक्सेस पे कॉपीराइट का बंधन नहीं होता। यू नीड नॉट seek the permissions of the copyright holder over here. The only thing expected is when you are using open access resources, तो plagiarism avoid कीजिए, and second thing is be honest and give the proper citation to the source. Okay, and 24/7 access will be there because these are all digital resources and you can access by using the internet. Now लोग ओपन एक्सेस में पब्लिश भी करना चाहते हैं और ओपन एक्सेस लिटरेचर यूज भी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उस रिसर्च की विजिबिलिटी बढ़ती है। देखिए, सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे आपका पेपर पब्लिश हो गया, वो कितने लोगों तक जाएगा? Only those subscribing that journal, only those library users जो लाइब्रेरी में वो जर्नल का सब्सक्रिप्शन होता है। लेकिन ओपन एक्सेस जर्नल में अगर आपने पेपर पब्लिश किया तो वो पूरे विश्व को दिखता है। ओके, सो रिसर्च विजिबिलिटी बढ़ती है, वो पेपर सबको दिखता है करके उसका यूज भी बढ़ता है। उसके ऊपर में अलग अलग रिसर्च बना सकते हो आप, और आपका रिसर्च बाकी लोग यूज करते हैं तो आपके पेपर को साइटेशन ज्यादा मिलते हैं, तो उस जर्नल का भी इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ता है, राइट? सो रिसर्च का एक्सेस बढ़ाने के लिए ओपन एक्सेस कॉन्सेप्ट है। दिस इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द रिसर्चर्स। नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू देयर आर सम रिपोजिटरीज, दे आर प्रोवाइडिंग यू द लिटरेचर अंडर ओपन एक्सेस। सो ये रिपोजिटरीज के एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो इसमें मेटा डेटा बनता है, दैट मीन्स यू कैन सर्च बाय कीवर्ड्स। उसके बाद में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ये ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज बिल्ट होती है। फिर सर्च इंजन ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज को इंडेक्स करते हैं। इसका जो ये होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट, उसका लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन होता है, और उनको यूनिक यूआरएल्स और डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स नंबर्स दिए जाते हैं। तो ये एडवांटेजेस है। देखिए, एज अ कॉमन मैन अगर कोई सर्च करता है गूगल में, आप जाके देखेंगे गूगल इज अ कमर्शियल सर्च इंजन, तो आप कोई कीवर्ड डालेंगे तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स आएंगे,
है ना। और इतनी सारी वेबसाइट्स एक 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 करके खोलेंगे आप, तो आपको एक पिक्यूलियर एक्सपीरियंस आता है कि वही वही वेबसाइट्स रिपीट होते रही, तो आपका उसमें टाइम वेस्ट होता है. So you must know properly how to use the search engines. You must know actual which are the digital libraries available, which are the directories of journals and all. Okay, तो उसी के लिए मैं अभी कुछ शेयर करने जा रही हूँ. See friends, we are in hybrid mode now. We have traditional libraries. Now we have internet-based libraries. Okay. These are electronic libraries and digital libraries are the middle phases. Now, ये पर्टिकुलर जो आप रिसोर्सेस देखेंगे तो उसके लिए एक प्रोवर्ब है, that is give a man a fish, feed him for a day, teach a man to fish, he feeds himself for lifetime. अभी हम थोड़ा आगे जाते हैं, इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे. अभी देखिए ये कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे. रिसर्च आउटपुट जो होता है पूरे वर्ल्ड में, कितना वो ओपन एक्सेस में होता है और कितना वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे होता है, आप यहाँ पे देखेंगे. तो सबसे रिसेंट ईयर 2019 का अगर हम देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में इतने रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं अलग अलग सोर्सेस में. उसमें से इंडिया में से इतने हैं 1,87,437. उसमें से ओपन एक्सेस में कितने हैं, तो आप देखेंगे ये जो आंकड़ा है वो है ना 32 lakhs, उसमें से ओनली 9 lakhs जो है वो ओपन एक्सेस में है. इंडिया के आप यहाँ पे देखेंगे 1,87,000, उसमें से 40,328 आर अंडर ओपन एक्सेस. ओके, ये डेटा है, यानी लोग अभी भी ओपन एक्सेस में काफी अच्छे से पब्लिश करने लगे हैं. अभी मैंने आपको ओपन एक्सेस का डेफिनेशन बताया क्या है. तो ये जो ओपन एक्सेस लिटरेचर है वो स्कैटर्ड वे में आपको मिलते हैं. आपको ओपन एक्सेस जर्नल्स में मिलेंगे, आपको ओपन एक्सेस आर्काइव्स मिलेंगे, आपको इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज मिलेंगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशंस मिलेंगे, एंड ऑफ कोर्स OER एंड OCWs. दिस इज द कॉन्सेप्ट we were using during pandemics. Okay, open educational resources and OCW for open courseware. Okay, तो अभी ये हर चीज क्या है और उसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले आपको अगर ओपन एक्सेस जर्नल्स के बारे में देखना है तो देखिए ये ई फॉर्म में होते हैं, ऑनलाइन होते हैं. इसमें पीयर रिव्यू प्रोसेस भी होता है. ओके, और पीयर रिव्यू पॉलिसी अच्छे से वो लोग फॉलो भी करते हैं. और इसमें जो भी पेपर्स पब्लिश होते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं. आप उसको डाउनलोड कर सकते हो फ्रीली. आप उसमें से कुछ डेटा यूज कर सकते हो आपके पेपर के लिए, आपके रिसर्च के लिए, प्रोवाइडेड कि आपको एट्रीब्यूशन देना है, साइटेशन देना है प्रॉपर. अभी ओपन एक्सेस जर्नल्स के लिए 4 वेबसाइट्स आपको ध्यान में रखना है. एक है DOAJ, दूसरा है फ्री मेडिकल जर्नल्स, तीसरा है हाईवायर प्रेस और चौथा है OpenJGet. अभी ये 1 by 1 का एक शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन हम देखेंगे क्विकली. देखिए ये है DOAJ. यहाँ पे जर्नल से भी आप सर्च कर सकते हो, आर्टिकल से भी सर्च कर सकते हो. आपको द मोस्ट रिसेंट डेटा, ये पर्टिकुलर इसमें 80 लैंग्वेजेस में जर्नल्स उपलब्ध है फ्रॉम 130 कंट्रीज. और आप यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डेटा देखेंगे, 12,697 journals are without APC. अभी what is this APC is? It is article processing charges. आपने बहुत से पेपर्स पब्लिश किए होंगे अभी तक, तो आपको एक चीज पता चली होंगी कि जर्नल्स आपको आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस मांगते हैं, यानी पैसे देना पड़ता है टू पब्लिश योर पेपर इन द जर्नल. ओके, तो
ये DOAJ में जो जर्नल्स है उसमें से 12,697 जर्नल्स है, वो ऐसी कोई भी फीस ऑथर से नहीं लेते। टोटल 18,383 जर्नल्स को आपको एक्सेस है अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और इतने सारे आर्टिकल रिकॉर्ड्स है आप देखेंगे। अभी 282 journals published from India are available under open access, right? तो अभी हमने ये स्टेटा देखा। देखिए अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और वो सब्जेक्ट की लिस्ट आपको यहाँ पे आएगी। ओके, तो शायद आप यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट्स, यहाँ पे देखेंगे आप एग्रीकल्चर ऑक्सिलरी, वैसे आपका फाइन आर्ट्स भी है यहाँ पे, तो आप आपका सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करेंगे। सपोज ये एक जर्नल आया, फार्मास्यूटिकल साइंसेस का ये जर्नल है, ये आया, तो इसमें देखिए ये पूरे उसके डिटेल्स है, इसमें उसका ISSN नंबर भी दिया हुआ है। ओके, और ये जर्नल्स का आप यहाँ पे देखेंगे, ये और एक जर्नल है हर्बल मेडिसिन जर्नल। यहाँ पे देखिए करंट इशू आपको यहाँ से मिलेगा, आर्काइव यानी बैक इश्यूज आपको यहाँ से मिलेंगे। ओके, और यहाँ पे इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग का इंफॉर्मेशन है, यानी ये जर्नल कौन से सर्विस में इंडेक्स हो रहा है, स्कोपस में है क्या, वेब ऑफ साइंस में है क्या, और किसी इंडेक्सिंग सर्विसेज में ये जर्नल एक्सेस किया जाता है। इसका पीयर रिव्यू प्रोसेस कैसा है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सपोज ये द मोस्ट लेटेस्ट वॉल्यूम जो है वो मैंने क्लिक किया, अभी यहाँ पे देखिए इसमें ये रिव्यू आर्टिकल है जीनस रूबिया, इसको PDF को क्लिक किया तो ये आर्टिकल का डिटेल्स आ गया, PDF को क्लिक किया तो पूरा आर्टिकल यहाँ पे आ गया। ये 15 पेजेस का है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप इसकी डायरेक्ट प्रिंट भी ले सकते हो, राइट। उसके बाद में इसके बैक इश्यूज आपको देखने हैं, तो देखिए ये पूरे बैक इश्यूज है उसके, आप देखेंगे उसको, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से आर्टिकल्स विदाउट APC, ठीक है, विदाउट APC 44 जर्नल्स है, ये है फार्मेसी की, आप यहाँ पे देखेंगे। आप अगर पब्लिशर्स देखेंगे तो आपको लगेगा एल्सवियर, BMC, हिंदवी, स्प्रिंजर, टेलर एंड फ्रांसिस, ये सब वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेड पब्लिशर्स है, उन्होंने उनके जर्नल्स ओपन एक्सेस में आपको एक्सेस दिया है उसका। तो इस प्रकार से यू कैन सर्च फॉर DOAJ। देखिए ये DOAJ में मैंने एक कीवर्ड डाला COVID-19, ठीक है। COVID-19 डालने के बाद में मुझे कुछ पेपर्स आए, उसमें से एक पेपर मैंने शॉर्टलिस्ट किया, ये है वो, ठीक है। ये दूसरा जर्नल है, आप देखेंगे ISSN नंबर है उसको, और कोविड का ही पेपर है, और ये पूरा पेपर डाउनलोड आ गया। इसके बाद में दूसरा जो साइट है DOAJ के बाद में, वो है हाईवायर प्रेस। देखिए फ्री एक्सेस टू डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, तो आपको इतने सारे साइंस के जर्नल्स को यहाँ से एक्सेस मिलता है, फ्री एक्सेस। ओके, जैसे मैंने पहला जर्नल क्लिक किया एडवांसेस इन न्यूट्रिशन, तो आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट फैक्टर 7.2 है, राइट। और हमको इसमें से ये पेपर है, TOC है, कोई भी एक पेपर करना है, व्यू आर्टिकल पे जाएंगे, पेपर डाउनलोड हो जाता है, राइट। तीसरी वेबसाइट है प्री मेडिकल जर्नल्स, आप यहाँ पे देखेंगे ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और ये इतने सारे टॉपिक्स है जिसके ऊपर में आपको ये मिलते हैं, जर्नल्स मिलते हैं। ओके, देखिए ये यहाँ पे आप देखेंगे इट इज फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी लिया है मैंने, तो ये फार्मेसी के जर्नल्स है, ये पूरे जर्नल्स है। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी, देखिए ये सब बैक इश्यूज के साथ में एक्सेस है, 72 से लेके प्रेजेंट तक के पूरे वॉल्यूम्स आपको यहाँ से मिलेंगे, और ये फ्री है। और कभी कभी क्या होता है कि इसका एम्बार्गो पीरियड होता है, फ्री आफ्टर 12 मंथ्स, फ्री आफ्टर 6 मंथ्स, इस प्रकार से, मतलब पब्लिश होने के 1 साल के बाद में वो ओपन एक्सेस करते हैं, ऐसी भी चीज इसमें होती है। देखिए ये एक जर्नल है, आप यहाँ पे देखेंगे 2022 का इशू है, तो इस प्रकार से पेपर्स डाउनलोड होते हैं, ठीक है। और इसमें इम्पैक्ट फैक्टर के हिसाब से भी अगर आपको ढूंढने हैं जर्नल्स, तो आप देख सकते हो, जैसे जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 2 से ज्यादा है तो उसकी ये लिस्ट है,
कितने जर्नल्स 6 महीने के बाद में फ्री होते हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर 5 से ज्यादा है, तो ये जर्नल्स है। तो इस प्रकार से देख सकते हो। अभी देखिए चौथी वेबसाइट है ओपन जेगेट। जेगेट एक कंसोर्शियम है और इंफॉर्मेटिक्स कंपनी लिमिटेड जो बेंगलोर में है इंडिया से, इसको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है उसमें ओपन एक्सेस के 7,000 से भी ज्यादा जर्नल को एक्सेस दिया गया है। ये उसका होम पेज है। आप यहाँ पे देखेंगे अलग अलग फैकल्टी के अलग अलग नंबर ऑफ जर्नल्स है। इसमें एक सर्च किया था मैंने बिजनेस कीवर्ड डाल के, तो इस प्रकार से आर्टिकल्स आए। सपोज मुझे ये पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ना है, स्मार्ट बिजनेस, तो मैंने क्लिक किया, उसके डिटेल्स आए पूरे। फिर मैंने फुल टेक्स्ट लिंक को क्लिक किया, तो वो आर्टिकल जहाँ है वो लिंक खुल गई यहाँ पे, स्मार्ट बिजनेस, द कस्टमर इज नॉट ऑलवेज राइट, व्हाट देन। ठीक है, इसके बाद में मैंने यहाँ पे बुलियन सर्च किया। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि सर्च टेक्निक जो है आपका साउंड होना चाहिए। तो स्टॉक एंड प्राइसेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसे कीवर्ड्स दिए मैंने, मल्टीपल कीवर्ड्स, और देखा तो ये 2 पेपर आए मुझे, राइट। तो इस प्रकार से यू कैन डू। देखिए ये ओपन एक्सेस जर्नल में अगर आप पेपर पब्लिश करते हो तो उसके फायदे क्या है। देखिए ई जर्नल, व्हाई टू चूज ई जर्नल, क्योंकि ये स्पेशल मैसेज है, द पेपर वाज एक्सेप्टेड एंड पब्लिश्ड ऑन द सेम डे। ये ई जर्नल्स की अर्ली पब्लिकेशन वेबसाइट्स भी होती है। सपोज आपका पेपर 6 महीने के बाद के इशू के लिए पब्लिश हुआ है, लेकिन वो पब्लिश आज ही कर देते हैं उनके अर्ली पब्लिकेशन वेबसाइट पे, राइट, ताकि वो रिसर्च जो है वो लोगों तक जल्दी पहुंचे। उसके बाद में देखिए मैंने ई जर्नल का इस्तेमाल जो है वो शुरू किया था 2006 में, इस पे काम किया था। तो मैंने ये यूएस से मेंटेन डी-लिब मैगजीन को पेपर भेजी थी, और इनका पॉलिसी ये है, देखिए नवंबर 2006 के इशू में आया था मेरा पेपर, सी दिस वन, ई कंटेंट अवार्ड्स। ये जर्नल का पॉलिसी मैं आपको बता दूं, 3 हफ्ते लेते हैं केवल रिव्यू करने के लिए, राइट। और बराबर तीसरे हफ्ते में आपको मैसेज आ जाता है वेदर द पेपर इज एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और नीड्स रिवीजन। ओके, तो इस प्रकार से यू कैन सेंड योर पेपर्स टू ई जर्नल्स। अभी देखिए जब आप ई जर्नल्स में आपका पेपर पब्लिश होता है, दैट टू ओपन एक्सेस जर्नल में, तो होता ऐसे है कि पूरी दुनिया में उसकी विजिबिलिटी होती है और आपको मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये एल्सवेयर का जर्नल है, तो ये साइंस डायरेक्ट में इंडेक्स्ड है। तो मेरा एक पेपर ये पर्टिकुलर इसमें पब्लिश हुआ था, दैट वाज ऑन गवर्नमेंट पोर्टल्स। देखिए, रिस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द सिटीजन्स थ्रू ई गवर्नमेंट पोर्टल्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज इन इंडिया। तो ये पेपर पब्लिश होने के बाद में मुझे एक ईमेल आया, इट वाज फ्रॉम यूनिवर्सिटी एट अल्बानी। उन्होंने वो पेपर का रेफरेंस दिया और उन्होंने कहा कि दे आर पब्लिशिंग वन एनसाइक्लोपीडिया ऑन साइबर बिहेवियर। ओके, तो उसमें आप इंडिया का केस स्टडी दो गवर्नमेंट पोर्टल्स का। तो मैंने 25 पेजेस का स्टडी लिखा एंड इट वाज पब्लिश्ड इन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइबर बिहेवियर। सो इन दिस वे when you go online academically you will be getting more and more opportunities, right? अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, 2005 में हमारे यहाँ पे नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना हुई थी और उसके अध्यक्ष थे सैम पिट्रोडा, और उन्होंने ये ओपन एक्सेस के बारे में कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो भी गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च है इंडिया में, इट शुड बी पब्लिश्ड अंडर ओपन एक्सेस। और वो रिकमेंडेशन की वजह से जैसे अकेडमी ऑफ इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेस, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, CSIR, ICAR, ICMR, ये सब जो हमारे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस है, वो जितने भी जर्नल पब्लिश करते थे वो सब ओपन एक्सेस हो गए। देखिए हर साइंस कॉलेज में आपको ये जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन दिखता है, करंट साइंस, साधना, प्रमाणा, लेकिन ये सब जो इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेस के जर्नल्स है, दीज आर अवेलेबल अंडर ओपन एक्सेस, दैट टू अलॉन्ग विद देयर बैक वॉल्यूम्स, ओके, बैक इश्यूज। तो इस प्रकार से तकरीबन 238 जर्नल्स फ्रॉम इंडिया
these are available under open access for you now. Okay, तो ये हो गया जर्नल्स के बारे में. नाउ हम अभी देखेंगे कुछ डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स के बारे में. देखिए, जर्नल्स में आपको क्या मिलता है? द मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, राइट? लेकिन क्लासिक बुक्स होते हैं हर फील्ड के, उसको भी रिफर करना बहुत जरूरी होता है. तो देर आर सम डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन इन इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो. तो कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी जो आपको काम आएंगे आपके थीसिस वर्क के लिए. देखिए, वन ह्यूज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन, दैट इज 1 मिलियन बुक प्रोजेक्ट. और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज जो है वो इसको मैनेज कर रही है. हमारे इंडिया में 22 स्कैनिंग सेंटर्स है. महाराष्ट्र में जयपुर नहीं, पुणे की जयकर लाइब्रेरी इसका सेंटर रहा है. ओके, और यहाँ पे स्कैनिंग बुक्स के स्कैनिंग का काम किया जाता है. और इन्होंने एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है, दैट इज यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी. इसका होम पेज इस प्रकार से दिखता है और यहाँ पे यू कैन गिव द कीवर्ड, ओके, एंड फ्रॉम हियर यू कैन ब्राउज द कलेक्शन. अभी देखिए, ये सर्च बॉक्सेस दिए हैं. यहाँ पे आप टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, लैंग्वेज वाइज सर्च कर सकते हो. सपोज ये सब्जेक्ट में अगर आपका कोई सब्जेक्ट है स्पेसिफिक, उस पे आप देखना चाहोगे तो यू कैन क्लिक ओवर हियर, यू विल गेट द सब्जेक्ट्स. ओके, सपोज आई एम क्लिकिंग ऑन बायोलॉजी. ठीक है, तो बायोलॉजी के इतने सारी किताबें, कितनी है? 16,351 किताबें आपको यहाँ से एक्सेस करने को मिलेगी. सपोज मुझे ये चाहिए तो ये किताब आ गया. ओके, यू कैन सी यहाँ पे टिफ व्यूवर है. देखिए, ये किताबें टिफ इमेजेस में सेव करके रखी है. तो आपको ये टिफ व्यूवर आपके सिस्टम में चाहिए तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, तभी वो किताब खुलेगी. यहाँ पे आप देखेंगे कि ओल्ड से ओल्ड किताबें यहाँ पे उपलब्ध है जिसका कॉपीराइट अभी चला गया है. बाकी किताबों के कॉपीराइट इश्यूज उन्होंने सॉल्व किए हैं. आप यहाँ पे देखेंगे कि कितने सब्जेक्ट्स के कितनी किताबें अवेलेबल है आज की तारीख में. तो यू कैन सी द स्टेटा, यू कैन जस्ट टेक अ लुक. पुराने से पुराने भी मिलेंगे आपको और नए से नए. आप क्या यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, बायोलॉजी. आंकड़े देखिए, एजुकेशन के देखिए, 1,61,633, इकोनॉमिक्स 32,000. लिस्ट कंटिन्यूज ओवर हियर. एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 2395, जनरल 90,000. Then you can see law 26,000. Then medical 7,629. The list continues over here, and you can see philosophy 55,000, physics 21,000, politics 21,000, and even you can see zoology. So this is the number. This many books are available, accessible from this library. अभी आप देखेंगे इसमें कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स भी है और आप देखेंगे ईयर, आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ से प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ आप देखेंगे. और ये 2022 तक के अवेलेबल है. अभी एक बहुत बड़ा नेशनल प्रोजेक्ट बन रहा है और NAAC में आपको एक प्रश्न भी पूछा जाता है इसमें कि आप इसके मेंबर हो क्या. दैट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया. ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है वो MHRD का इनिशिएटिव है एंड इट इज डेवलप्ड बाय IIT खड़गपुर. ओके, और इसका जो मेन स्लोगन है वो वाक्य जिसे हम कहते हैं, वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया. मतलब ये एक लाइब्रेरी में आप चले जाओ, आपको KG से PG तक सब लिटरेचर मिलेगा, राइट? दैट इज वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया. आपको स्कूल लेवल का चाहिए, यू कैन गो टू हियर. आप इस प्रकार से कर सकते हो.
जर्नल्स चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस चाहिए, स्कॉलरली पब्लिकेशंस चाहिए। दिस इज कोविड-19 उन्होंने पैंडेमिक्स में स्पेशल रिपोजिटरी भी बनाई है ना, फॉर द ईज ऑफ द रिसर्चर्स। यहाँ पे लॉगिन का बटन होता है, आपको इसमें लॉक करना पड़ता है, तभी ये सब सोर्सेस आपके लिए खुलते हैं। तो इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस, इसके लिए कोई फीस नहीं है। आपके ईमेल आईडी से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। ये कैप्चा देना है, यहाँ पे रजिस्टर करना है, और आपको हर बार लॉगिन में जाके आपके पासवर्ड से लाइब्रेरी यूज करनी है। अभी देखिए कोविड-19 के जो ये थी रिपोजिटरी, उसको मैंने खोला, तो उसमें बहुत सारे वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स मुझे यहाँ पे मिले। मुझे लगता है कि जॉन हॉपकिंस का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो डैशबोर्ड दिया उन्होंने कोविड का। उसके बाद में इस प्रकार से इंस्पायरिंग ये है, वीडियोस है, उसमें आर्टिकल्स है कोविड-19 पे। और यहाँ पे 3 लेवल में सर्च होता है। देखिए व्हेन यू क्लिक ऑन दिस सर्च बटन, तो आपको बेसिक स्ट्रीम आती है। जैसे मैंने सोशल साइंसेस को चुना, सोशल साइंसेस में आप देखें ये आंकड़ा, इतने सारे आइटम्स है उसमें। फिर सेकंड लेवल पे मैं गई और उसमें मैंने लॉ लिया सोशल साइंसेस में, तो लॉ पे आप देखेंगे कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले। फिर थर्ड लेवल में मैं गई और मैंने उसमें लिखा क्रिमिनल लॉ, ठीक है। देखिए क्रिमिनल लॉ, तो क्रिमिनल लॉ में मुझे कितने मिले, आप यहाँ पे देख सकते हो 2 लाख आइटम्स मुझे मिले, ठीक है। तो मैंने उसको सर्च किया, तो ये देखिए ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले। ओके, तो इसमें मुझे ये पहला डॉक्यूमेंट देखना है, ये क्या है, तो मैंने इसको क्लिक किया। तो इस प्रकार से उन्होंने सब बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन दी। ये कहाँ पर है, सेमेस्टर 2 का ये पेपर है, ओके, 11 मार्च का 2011 का, कुसाट की लाइब्रेरी में है ये। और मैंने ओपन किया इसको, देखिए ये क्वेश्चन पेपर आया क्रिमिनल प्रोसीजर का, लॉ में क्रिमिनल लॉ, राइट। तो ये एलएलबी का पेपर आया, क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि ये पूरे 2 लाख डॉक्यूमेंट्स कौन से, तो आपको यहाँ पे उसमें टाइप आएगा। 525 आर्टिकल्स है, 4204 बुक्स है क्रिमिनल लॉ के, एक करस्पॉन्डेंस है, 3 जर्नल्स है, लॉ एक्ट जो है वो 27,437 है, लॉ जजमेंट्स जो है 1,69,622 है, मीडिया आर्टिकल्स 3 है, क्वेश्चन पेपर्स 11 है, जिसमें से एक क्वेश्चन पेपर हमने अभी देखा, रिकॉग्निशन 1 है। तो इस प्रकार से डिटेल्स भी आपको आता है, राइट। अभी देखिए मैंने जस्ट सपोज फार्मेसी का कोई है क्या यहाँ पे, पता नहीं, फार्मेसी लिया। फार्मेसी में मैं जाने के बाद में मुझे 1,70,228 रिजल्ट्स आए यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे उसमें क्या क्या है, इसमें ऑडियो बुक्स है 2, बुक रिव्यूज 406 है, केस स्टडी 1167 है, 3 न्यूज़पेपर है, 1 पीरियोडिकल है, 207 जो है वो फोटोग्राफ्स है, 6 पोस्टर्स है, 57 स्क्रिप्ट्स है। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप्स के डॉक्यूमेंट मैं रिट्रीव कर सकती हूँ, ओके। अभी यहाँ पे देखिए अगर आपको वीडियोस देखने हैं इस पर्टिकुलर विषय पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, राइट। ऑडियोस चाहिए तो ऑडियोस भी मिल जाएंगे वहां पे क्लिक करने के बाद में। अभी आगे चलते, देखिए जो एक्टिविटी मैंने किया है उसमें ब्राउशर्स है, कैलेंडर्स है, कैटलॉग्स है, चैप्टर्स है, प्रोसीडिंग्स है, डेटा सेट्स है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे बिब्लियोग्राफी है, और इतने सारे आर्टिकल्स है फार्मेसी पे, 1,44,120। तो इस प्रकार से आप आपका विषय यहाँ पे डालिए और सर्च कीजिए। देखिए यहाँ पे 230 सिनॉप्सिस भी है फार्मेसी में, राइट। 418 क्वेश्चन पेपर्स है, टेक्निकल रिपोर्ट्स है, वीडियो लेक्चर्स 60 वीडियो लेक्चर्स है इसमें, स्टोरीज है, सोर्स कोड्स भी है। और यहाँ पे देखिए फार्मेसी के थीसिस कितने हैं, 2491 थीसिस है, ओके। ये उसकी लिस्ट है, आपको कोई भी थीसिस पढ़ना है तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और कितने जर्नल्स है, 77 जर्नल्स है,
उन्होंने देखिए अलग अलग यहाँ से जो भी ओपन एक्सेस जर्नल्स है उसकी पूरी लिंक्स यहाँ से दी है। अभी जैसे हमने कहा कि DOAJ इट इज द डायरेक्टरी फॉर जर्नल्स, वैसे ही जितने ओपन एक्सेस बुक्स है इंटरनेट पे स्कैटर्ड, उसके लिए एक डायरेक्टरी बनी गई है, दैट इज DOAB। ठीक है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स। अभी इसमें मैंने क्रिमिनल लॉ ये 2 शब्द डाले। ओके, तो क्रिमिनल लॉ पे देखिए मुझे 8 किताबें आई। एक पहली किताब है टेररिज्म, क्रिमिनल लॉ एंड पॉलिटिक्स। मैं इसको क्लिक करती हूँ तो देखिए 300 पेजेस की किताब है। यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन प्रिंट इट, यू कैन टेक द प्रिंट। अभी देखिए इसमें मैंने एक सब्जेक्ट कौन से है उसको सर्च किया कीवर्ड्स में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के 52 बुक्स है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के 40 बुक है, फार्माकोलॉजी के 198 है, फार्मेसी डिस्पेंसिंग के 10 है, देन फिनोमिनोलॉजी एंड एग्जिस्टेंशलिज्म के 26 है। तो इस प्रकार से आपको अल्फाबेटिकली कितने बुक्स है हर विषय में उसकी लिस्ट भी आ जाती है। अभी मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को क्लिक किया तो उसमें 52 बुक्स आए, उसमें से ये एक बुक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। और इसको मैं अगर क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे 215 पेजेस का ये बुक है, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। राइट, आगे चलते हैं। क्यों ऐसा हुआ? थोड़ा मैं स्टॉप करके फिर से चलाती हूँ प्रेजेंटेशन को। ओके, अभी यहाँ पे आप देखेंगे देर इज वन मोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, वो है IGNCA का इनिशिएटिव है वो। और उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई है, कल्चरल हेरिटेज डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल सांस्कृतिक संपदा पुस्तकालय। इसमें देखिए इसमें आपको लोक साहित्य, पारंपरिक साहित्य, हिंदी स्पोकन स्टेट्स जो है इंडिया के उनका मिलता है। जैसे राजस्थान के बारे में जानना है तो ये इस प्रकार से लिंक्स दिए हुए हैं। जैसे आपको सिंहासन बत्तीसी पढ़ना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। राजस्थान एक परिचय, भौगोलिक और परिप्रेक्ष्य, पुरालेखा स्रोत वगैरह वगैरह, ये डिजिटल इमेजेस है राजस्थान से रिलेटेड। राजस्थानी लोक भजन है, राजस्थानी नृत्य गीत है। पारंपरिक साहित्य में बुद्ध की कहानियां, सिंहासन बत्तीसी, पंचतंत्र, हितोपदेश। इफ यू क्लिक ऑन बुद्ध की कहानियां तो आपको बुद्धिस्ट फेबल्स मिलेंगे, क्लासिक्स मिलेंगे, लाइफ एंड लीजेंड्स ऑफ बुद्धा मिलेगा। ये आपको 2 लैंग्वेजेस में मिलेंगे। वेबसाइट जो है इंग्लिश और हिंदी में होती है। Then there is one more initiative of national initiative, that is Mukta Bodha, इंडोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, और इनकी एक डिजिटल लाइब्रेरी है। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस यू विल गेट द डिटेल्स ऑफ द लाइब्रेरी। व्हेन यू एंटर इन द लाइब्रेरी यू विल गेट द कैटलॉग। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक टाइप के बुक्स मिलेंगे। और आप देखेंगे यहाँ पे यू कैन क्लिक ऑन एनी वन ऑफ द बुक, वो बुक ऐसे खुल जाता है। यू कैन सी द तंत्रलोका ऑफ अभिनव गुप्ता इज देयर। ये संस्कृत के श्लोक आपको दिख रहे हैं अभी यहाँ पे। इस प्रकार से आप इस लाइब्रेरी को भी यूज कर सकते हो। देन ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी जो है उसमें से आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्शंस भी मिलेंगे। जैसे आप ये मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन को क्लिक करते हो तो आपको गोकर्ण वैदिक मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन मिलेगा ऑफ जोगलेकर फैमिली, कोडलेकर फैमिली एंड सांबदीक्षिता फैमिली। इनके मैन्युस्क्रिप्ट्स दिखेंगे। देखिए सपोज आई वांट टू सी द जोगलेकर कलेक्शन, देन ये PDF में आ गए, आप देखेंगे
पीडीएफ को क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखेंगे ये फोलियो, इसमें 20 पेजेस का ये मैन्युस्क्रिप्ट है और इस प्रकार से वो मैन्युस्क्रिप्ट खुल जाता है, राइट। अभी मैन्युस्क्रिप्ट की जब बात निकली है तो आपको बता दूं कि हमारे पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन चला, दैट इज नोन एज नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। और उन्होंने क्या किया कि मैन्युस्क्रिप्ट्स कैसे मंदिरों में, मठों में, किसके पर्सनल कलेक्शंस होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज में होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज में होते हैं। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हमारा ये हेरिटेज है ना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ये, जिसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने एक ये मिशन जो है भारतीय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, उसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि मैन्युस्क्रिप्ट्स को पहले लोकेट किया, उसका बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस बनाया और उसके बाद में डिजिटाइजेशन करने का काम शुरू किया है। और उन्होंने जो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस बनाया मैन्युस्क्रिप्ट्स का, इट इज नोन एज भारतीय कृति संपदा, भारतीय कृति संपदा। उसमें आप देखेंगे कि इस प्रकार से पूरा उसका जो लोकेशन है, सपोज ये मैन्युस्क्रिप्ट्स मुझे पढ़ना है तो कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी स्क्रिप्ट में है, ओके, कौन से सब्जेक्ट पे है और वो एक्चुअली कहाँ पे है, तो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है वो। तो आप इस प्रकार से वो बिब्लियोग्राफिक डेटा यूज कर सकते हो। देखिए फिर ये आ गया उसकी पूरी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स। तो ऐसे डेटाबेस बनाने का काम उन्होंने शुरू किया है। नाउ आई एम अगेन कमिंग टू NHRD इनिशिएटिव, दैट इज विज्ञान प्रसार डिजिटल लाइब्रेरी। ओके, इसमें लॉगिन करना पड़ता है अगर आप नए यूजर हो तो, लॉगिन फीस नहीं है। इसमें क्या किया गया है, इसमें जो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक बच्चों को रेफरेंस बुक्स लगती है और रेफरेंस बुक्स को डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया है। जैसे इस लाइब्रेरी को मैंने एनवायरनमेंट कीवर्ड डाल के सर्च किया, सो आई रिट्रीव्ड वन बुक, ये बुक आया, इसको मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए व्यू कंप्लीट बुक, डाउनलोड बुक, तो मैंने व्यू बुक को किया तो ये बुक खुल गई। आप देखेंगे एनवायरनमेंट के ऊपर में है और 155 पेजेस की ये किताब है, बच्चा आराम से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकता है, राइट। नाउ देयर इज वन मोर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन, दैट इज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डिजिटल लाइब्रेरी। ओके, अभी यहाँ पे देखिए इसका पेज इतना कलरफुल है कि बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसको रीड बुक्स को क्लिक किया तो आपको ये कैटलॉग आता है, यानी कभी कभी छोटे बच्चों का रहता है ना, मुझे रेड कवर की किताब ही पढ़नी है आज, तो वो कवर के कलर से, एज के हिसाब से, साइज ऑफ द बुक एंड द हीरोज, है ना, या टाइप ऑफ द बुक, तो उसके हिसाब से, जैसे रियल एनिमल कैरेक्टर्स, पिक्चर बुक्स, तो इस प्रकार से ये अवेलेबल है। सपोज मैंने ये जो एक बुक है इसको क्लिक किया तो ये ओपन हो गई, रीड द बुक को क्लिक किया तो देखिए ये पूरी बुक ओपन हो गई। बच्चा आराम से एक एक पेज को खोलता है और पढ़ता है, राइट। इस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छे से एरोज दिया है बैकवर्ड आगे जाने के लिए, ये होम है, तो उन्होंने यूजर ये जो है नेविगेशन वो बहुत इजी बनाया बच्चों के लिए। बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टोरी प्लेस, मतलब ये बच्चों को कहानियां सुनाता है, बच्चे को इन्वॉल्व करके कहानियां सुनाता है। इट इज यूजिंग ऑल द मल्टीमीडिया टेक्निक्स, दैट इज वॉइस भी है, पिक्चर भी है, इसमें ग्राफिक्स भी है, ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पे बच्चों को उसको इन्वॉल्व करते हुए स्टोरीज बताई जाती है, राइट। तो दिस इज स्टोरी प्लेस, सी दिस इज स्टोरी प्लेस। अभी मैं आपको एक बता दूं कि आपको फॉरेन ऑथर्स के बुक्स चाहिए तो यू कैन ऑल्सो ट्राई प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग। ये प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग साइट जो है उसमें बहुत सारे ओपन एक्सेस बुक्स को उन्होंने एक्सेस दिया हुआ है और आप अलग अलग विषयों के जो बुक्स है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग। अभी एक नई वेबसाइट आपको बता दूं, लिब्रीवॉक्स, और इसमें आपको ऑडियो बुक्स मिलेंगी, राइट, जो बुक्स बोलती है।
अभी यहाँ पे देखिए लिब्रिवोक्स को अगर आप सर्च करते हो तो इसमें सब्जेक्ट वाइज सर्च भी दिया है, लैंग्वेज वाइज सर्च भी दिया है, ओके, टाइटल वाइज सर्च भी दिया है। सपोज जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए मैंने देखा तो इंग्लिश लैंग्वेज में 28,785 बुक्स है और 489 बुक्स को ऑडियो बुक बनाने का काम शुरू है। तो ऐसे ही मैंने थोड़ा सा देखा कि चलो हिंदी में है क्या कुछ, तो हिंदी में भी 5 बुक है। फिर मुझे और क्यूरियोसिटी जगी, मैं बोली मराठी का कोई है क्या, देखते, तो मराठी का भी एक बुक है। उसको क्लिक किया मैंने, मानवीय अधिकाराचा जाहीरनामा। ये डाउनलोड भी होता और आप सुन भी सकते इसको, राइट। सो लिब्रिवोक्स इज अ ऑडियो लाइब्रेरी, ओके। सो दिस इज लिब्रिवोक्स। और आप यहाँ पे देखेंगे कि टाइप ऑफ बुक कौन सा है, मतलब चिल्ड्रंस नॉन फिक्शन, एक्शन एडवेंचर, क्लासिक्स, क्राइम एंड मिस्ट्री, देन आप देखेंगे कल्चर एंड हेरिटेज फिक्शन, देन ड्रामेटिक फाइंडिंग्स, देन फैंटास्टिक फिक्शंस, जनरल फिक्शंस, इस प्रकार से भी आप इसको सर्च कर सकते हो। प्रीति, प्रीति, येस मॅडम. आपण 5 मिनिटाचा ब्रेक घेऊया इथे, हो हो हो. येस मॅडम. 5 मिनिटाचा ब्रेक. येस. पार्टिसिपंट मीटिंग लीव नका करू.